عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الناس كالإبل المعاء لا تكاد تجد فيه راحلة۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے آغاز گفتگو سے کل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان شفیع آسیہ ہادی انس و جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معطر بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ اس رب العالمین نے آج آپ ہم سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آج اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج یہ امت جمع ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج دور و دراز سے آئے ہوئے سبھی معزز سامعین کو اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے ایک علمی پیغام دوں گا اور آج کی گفتگو میں یہ بتاؤں گا کہ علم کیا ہے، ایجوکیشن کتنا زیادہ ضروری ہے۔ میں نے اللہ کے کلام کی ایک آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے دنیا میں بھیجا؟ تو آئیے ذرا اپنے آقا کی زبان ہی میں سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کس لیے بھیجا دنیا میں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ ایسا معلم جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے، وہ ایسا معلم ہے جو کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا، وہ ایسا معلم ہے جو دنیا کی کسی یونیورسٹی یا کسی بھی بڑے مدرسے میں نہیں پڑھا، مگر وہ ایسا معلم جس نے ساری کائنات کو علم کے لیے ابھارا ہے، پوری امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ میری امت میں کوئی ان پڑھ نہ رہے، میری امت کے لیے علم کتنا ضروری ہے وہ دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اترتی ہے تو اس کی شروعات بھی اقرا سے ہوتی ہے۔ اے لوگوں بتاؤ، تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی پر پہلی وحی کی شروعات پڑھنے سے ہو رہی ہے؟ آج اسی امت سب سے زیادہ اسی
نبی کی امت سب سے زیادہ جاہل نظر آ رہی ہے۔ میں ابھی ماڈرن تعلیم کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا، پہلے یہ آپ سمجھے جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت لوگوں کی ایک قطار یعنی اونٹ کی طرح 100 اونٹوں کی طرح ہوں گے، 100 اونٹ ہوں گے، مگر وہ 100 اونٹ اس میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہوگا۔ اب جب اس کو سمجھ گئے تو آپ ذرا اس کی تشریح بھی سمجھتے چلیے۔ آج کے سروے کے مطابق ہندوستان کے اندر جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، ان مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد تقریباً روزانہ اگر ایک سروے کیا گیا، اس سروے کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے کہ ہمارے بھارت کے اندر روزانہ کم سے کم جتنے علماء کرام سال میں کتنے فارغ ہو رہے ہیں تو اس کی تعداد 50,000 بتائی جا رہی ہے۔ پھر ایک سروے اور کیا گیا جس میں یہ سروے کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر یہ جو جلسے ہوتے ہیں اور یہ جو آراز منعقد کیے جاتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، تو یہ بھی اس سروے میں نکل کر کے آیا کہ روزانہ ہندوستان کے اندر تقریباً 6,000 جلسے ہوتے ہیں۔ اب اے مسلمانوں ذرا غور کرو، جس امت کے اندر جس بھارت میں ہم رہ رہے ہیں، اس بھارت میں علماء کرام کی تعداد فارغ ہونے والوں کی تقریباً 50,000 ہے، اور 50,000 دونوں یہ تو علماء کرام کی تعداد ہے، مگر روزانہ جو جلسے ہو رہے ہیں ان کی تعداد 6,000 ہے۔ اب ذرا اس میں عوام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، عوام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارا سب کچھ ایک رسم بن کر کے رہ گیا۔ آج ہماری پہچان جہالت سے ہو رہی ہے، آج بریلویت کی پہچان صرف جہالت سے ہو رہی ہے۔ آج دیگر قومیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی مسلمانوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو قوم مسلم ہے، اس مسلم کے اندر یہ جو بریلوی مذہب کے ماننے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ جاہل نظر آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ذرا حدیث کو ملائیے۔ میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت 100 اونٹ کھڑے ہوں گے قطار میں، مگر ان میں سواری کے ایک قابل نہ ہوگا۔ تو آج علماء کرام کی ایک فہرست ہمارے پاس، مگر اس میں کام کے کتنے لوگ ہیں؟ کم سے کم اکا دکا نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہر ایک کسی نے کہا تھا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، تو صرف اذان ہی ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ جلسہ بھی ایک رسم بن کر رہ گیا ہے۔ کتنے لوگ جلسے میں آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ دیکھیں گے وہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں دیکھیں گے وہ کتنا اچھا بولتے ہیں۔ اے لوگوں، جلسے میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے، جلسہ اس لیے کیا گیا کہ تم تک رسول اللہ کا وہ پیغام پہنچا جائے جس پیغام کو پہنچانے کے لیے تمہارے نبی نے طائف کے اندر پتھر کھائے ہیں۔ وہ نبی تم تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ کون سی ایسی مصیبت ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی ہو؟ طائف کے میدان میں نبی کریم کو اتنا زخمی کیا گیا، اتنا زخمی کیا گیا، آپ کے منہ بیلے بیٹے حضرت زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا کو اتنا زخمی کیا گیا تھا کہ آپ کو جوتی مبارک پہنے تھے، اس کے اندر خون کی پرت جمع ہو گئی تھی۔ اتنے میں جب ملک الجبال آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس قوم کو ہم ایسے پیس دیں۔ اب طائف کی جو پہاڑی ہے، تین پہاڑیوں کے درمیان طائف ہے، ایک ادھر پہاڑ ہے، ایک ادھر پہاڑ ہے، ایک ادھر پہاڑ ہے اور بیچ میں طائف ہے۔ اب ذرا جبریل بھی حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، یہ ملک الجبال ہے کیا؟ یہ پہاڑوں کا فرشتہ جس طرح سے ملک الموت، یہ ملک الموت نام نہیں ہے بلکہ اس کو ملک الموت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ تم لوگوں کی روح قبض کرو گے۔ آپ ذرا دیکھیے گا وہ ملک الجبال کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان کو میں پیس کر کے رکھ دوں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اے جبریل اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میں دنیا کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں۔ تو اے قوم مسلم سنو، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آج میں صرف تم سے مخاطب ہوں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تو جب کلمہ پڑھ لیے ہو تو پورے طور پر تم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے میرے نبی کو کتنا علم سے پیار تھا اور کتنا میرے نبی نے کوشش کیا کہ میری امت میں کوئی جاہل نہ رہے۔ بدر میں کچھ قیدی گرفتار کر لیے گئے، ان قیدیوں کی رہائی کے لیے جو فدیہ رکھا گیا تھا تو ایک قیدی کی رہائی کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا اس لیے کہ وہاں کفار و مشرکین جن کو اطالب مقرر کیا جا رہا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان کو میرے نبی نے
तालीम मुकर्रर किया, कहा एक कैदी कम से कम 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा दे, वही उसका फिदिया हो जाएगा। आप जरा देखो, और मैं आगे बताऊं आपको कि एजुकेशन के ताल्लुक से मेरे आका कितना फिक्रमंद रहते थे। आपको बताऊं, नबी पर क्या मुसीबतें नहीं आई, क्या नबी के लिए तबलीग के लिए दरवाजा नहीं रोका गया, एलानिया भी तबलीग नहीं हो रही, एलानिया तबलीग पर पाबंदी लगी, मगर मेरे नबी तबलीग कर रहे हैं। उसमें जब कुफार और मुशरिकीन ने मजालिम ढाना शुरू किया तो आका करीम ने ज़ैद हज़रत अरकम के घर से तालीम की शुरुआत की, और अरकम दारे अरकम से तालीम की इब्तिदा होती है, और जाकर के मस्जिद नबवी में भी, अब मस्जिद नबवी दरसगाह भी है, मस्जिद नबवी में नमाज भी नहीं हो रही है, मगर सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि उसमें सहाबा किराम को पढ़ाया भी जा रहा है। और जरा इसको आगे लेकर के चलिए, सहाबा किराम को कितनी फिक्र थी। हजरत उमर है, और हजरत उमर के साथ एक और अंसारी सहाबी है। मेरे नबी ने जब बायअत मुआखात कायम किया था, ए मेरे सहाबी तुम इनके भाई हो, तुम इनके भाई हो, उस वक्त हजरत उमर को कहा था, ए उमर तुमको मैं एक अंसारी सहाबी का भाई बनाता हूँ। अब हजरत उमर ने कहा था, ए अंसारी सहाबी सुनो, तुमको रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि एक दिन मैं जाऊंगा आका करीम की बारगाह में, एक दिन मैं इल्म हासिल करूंगा, उसके बाद क्या होगा, मैं इल्म हासिल करके आऊंगा, उसके बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरे दिन मैं काम करूंगा, और तुम इल्म हासिल करने जाओगे, और मेरे आका से जो पढ़ के आओगे वो तुम मुझे पढ़ाओगे। आप जरा बताओ आज कैसी आज हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी शिकायत है, और मुसलमानों सुनो, मैं आपको एक और सर्वे बताता हूँ। 2006 के अंदर एक हुकूमत हिंद ने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे की रिपोर्ट जो आई है वो जरा देखिए, वो दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है। उस सर्वे में एक सेक्टर कमेटी की जो रिपोर्ट पहुंचाई है, उस सर्वे में इसमें किया गया, उसमें ये किया गया कि मुसलमान किस मामले में सबसे ज्यादा पीछे है। तो आप जरा देखो, गौर से सुनना मेरी बात। 2006 के अंदर हुकूमत ने सर्वे कराया, और उस सर्वे के अंदर जो भी खर्चा आया, और उसकी रिपोर्ट 403 सफाहात में तैयार हुई है। अब वो रिपोर्ट जो आई है वो हमारे पढ़ने के लिए आई है, हुकूमत का पैसा खर्च हुआ है, मगर हमने उसको नहीं पढ़ा है। मगर जिन लोगों ने पढ़ा है, मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान को उसको पढ़ना चाहिए। अगर मुसलमान पढ़ेगा तो उसमें 2 चीजें महसूस करेगा। एक तो ये है, उस 2006 के सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई कि भारत का मुसलमान तालीम के मामले में दलित से भी ज्यादा पीछे है, चमार तुमसे ज्यादा आगे निकल गए हैं। मगर ये हमारी कौम, आज इस कौम के अंदर ऐसे भी हैं, आज हम क्या रोना रो रहे हैं, आज मुसलमान गरीब हैं। गरीब क्यों है? इस गुर्बत की वजह क्या है? इस गुर्बत की वजह यह है कि मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमान के पास तालीम नहीं है। और तालीम कहाँ से आएगी? तालीम इसलिए नहीं है कि वो गरीब है, और गरीब इसलिए है कि उसके पास तालीम नहीं है। अब आपको एक और बात बताऊं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप रह रहे हो, हिंदुस्तान में कंपटीशन का दौर है। ऐ लोगों, यहाँ एक अगर जगह निकलती है, अगर फौज की जगह निकली तो जगह निकलती है 5000, मगर हिंदुस्तान में बैठने वाले 50,000 लोग हैं। तो ये कंपटीशन का दौर है। अगर आप एजुकेशन में मेहनत नहीं करोगे, अगर आप मेहनत करके आगे नहीं बढ़ोगे, कितने 100 मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर वो पढ़ते उस 100 में से तकरीबन 94 बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल करते हैं, मगर उनकी तालीम जा करके हाई स्कूल और इंटर तक रुक जाती है। उसके बाद होता क्या है? अब जब उस बच्चे से पूछा जाता है तुमने हाई स्कूल तक क्यों पढ़ा है, तुमने इंटर तक क्यों पढ़ा है, तो उसका जवाब बड़ा मायूस गुण आता है। कहता है मौलाना साहब, मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था, मगर मेरे पास कुछ हिसाब नहीं थे, मेरा बाप बीमार पड़ गया था, मजबूरी की वजह से मैंने तालीम मुझे रोकना पड़ा। मैं इंटर तक पहुंच गया, मगर मुझे तालीम को रोकना पड़ा। सब लोग खड़े हो जाएं, बाअदब सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, आमदे हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हज़रात, बैठ जाएं, जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं। हाँ,
जो जहां बैठा है बस वहीं बैठा रहे, जो लोग पीछे हैं वो आगे आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं आप हजरात, खामोशी के साथ बैठे हैं आप, बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। ऊपर आ जाइए, बस बैठ जाएं आप, खामोशी के साथ बैठ जाएं, इधर बैठे, इधर सामने आ जाएं आप हजरात। हाँ, जलसे के तकद्दुस को पामाल ना करें, इसके तकद्दुस को महफूज रखते हुए आप हजरात अपनी जगह ले लें और सैयद साहब क़िबला के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करें और हजरत का बयान सुनें। बैठ जाएं बादब। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हुजूर औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला की आमद है। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नाम अमाल में इजाफ़ा करें। आपसे गुजारिश है कि आप शोर शराबा ना करें, आराम से जलसागाह में बैठ जाएं। इसके बाद मान हजरत का खिताब होगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बैठ जाएं आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था मुसलमानों, आज हमारा हाल क्या है? तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सबसे अहम दो चीज़ें हैं, एक तो तालीम और दूसरे तिजारत। तालीम में हमारा हाल दलितों से भी ज़्यादा पीछे है, बहुत पीछे हम चले गए। आप कहीं भी आप निगाह डालिएगा, लखनऊ चले जाए, दिल्ली चले जाएं, कहीं भी आप निगाह डालिए, आपको बड़े बड़े जो शोरूम नज़र आएंगे, एजेंसियां आएंगी, वो पता चलेगा ये फलां की है, ये फलां की है। और वहाँ अगर कोई पिंचर बनाने वाला मिलेगा तो वो मुसलमान मिलेगा। वो इसलिए पिंचर बना रहा है कि उसने तालीम हासिल नहीं की। मुसलमानों, तालीम कितनी ज़रूरी है वो आज मैं आपको बताऊँगा। हुजूर सैयद साहब क़िबला मौजूद हैं और तालीम के अंदर वो चीज आप मॉडर्न तालीम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐ लोगों अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाओ, हाफिज आलिम बनाना फर्ज नहीं है, मगर इतना इल्म जरूर सिखाओ कि वो अपनी जरूरियात जिंदगी को कम से कम जितनी उसकी जिंदगी के लिए जरूरी चीज है, नमाज कैसे पढ़ेगा उतना इल्म उस पर हासिल करना फर्ज है, रोजा रखने के मसाइल उस पर जानना जरूरी है, जितने जिंदगी के जरूरी मसाइल हैं उन सब चीजों का जानना जरूरी है। मगर ऐ लोगों जरा सोचो आज हमारा हाल क्या है। उस हालत को अगर हम बनाएं, मुसलमानों के पास अगर ताकत है, अगर यही मुसलमान आज अगर बिजनेस करता होता, आज अगर तिजारत करता होगा, तो आज मुसलमानों में हसद और जलन की जो एक बीमारी है, ये हसद और जलन क्यों है? इसलिए कि वो कमजोर है, वो तो तिजारत खुद नहीं कर सकता है, मगर अगर उसका भाई अगर आगे बढ़ रहा है तो ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो अपने भाई को नीचा गिराने की है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो अपने भाई को ही नीचा दिखाने की है, अगर मुसलमानों के पास ताकत है तो एक दूसरे की चुगली करने की है, अगर मुसलमानों के पास ताकत है तो एक दूसरे को कत्ल करने की है, अगर मुसलमानों के पास ताकत है तो एक दूसरे के लिए कत्ल और फसाद की फजा तैयार करने के लिए है। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नकीबे बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। मैं ये कहता चाहता हूं कि ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को अब अनपढ़ मत बनाना। आप तिजारत की बात करते हो, वो नबी जो 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए निकला हो, उस नबी की उम्मत आज तिजारत और बिजनेस में कितना पीछे आ गई है। इसीलिए आप देखो आज तुम्हारे हाथ में कलम नहीं है, मगर कलम की अहमियत जरा कुरान से पूछिए। कुरान कहता नून वल कलम वमा यस्तरून। आप जरा देखो कुरान ने कितनी बड़ी अहमियत बताई। और एक बात याद रखिएगा, हुकूमत उसी की होगी जिसके पास इल्म होगा, हुकूमत उसी की इख्तियार उसी का होता है जिसके पास एजुकेशन होती है। आज तुम एजुकेशन में कितने पीछे आ गए हो। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि इसी भारत के अंदर 100 बच्चे पढ़ने के लिए निकले, मगर 94 बच्चे वो तो पढ़ने के लिए, मगर ऐ मुसलमानों एक
तकलीफ की बात यह है आज भी हमारे कौम मुस्लिम में 4% बच्चे ऐसे हैं जो मुस्लिम स्कूल का रुख नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह गुर्बत है। आप जरा देखो इस गुर्बत की वजह से मुसलमान किस तरह से गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। इसलिए ए मुसलमानों में इस वक्त खानकाह मारेरा का मैं नारा बताना चाहता हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो नारा। खानकाह मारेरा का नारा है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ए मुसलमानों जितना तुम खर्च करते हो उस खर्च में कमी करके अपने बच्चों को जाहिल मत होने देना। आप जरा देखिएगा आज सरमायादारों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मगर आज जो हमारे बच्चे दीनी तालीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉडर्न तालीम की बात कर रहा हूँ। कि आप बताओ जरा एक मुसलमान अगर एक हदीस पर अमल कर लिया होता तो आज मुसलमानों के हॉस्पिटल होते, मुसलमानों के स्कूल होते, मुसलमानों के कॉलेज होते। वो हदीस बड़ी प्यारी है। मेरे आका ने फरमाया था कि इंसान जब मर जाता है तो उसके सारे अमाल का सिलसिला बंद कर दिया जाता है इल्ला मिन सलासतिन, मगर अगर मरने वाले ने 3 काम करके मरा है तो उसके अमाल का सिलसिला जारी रहता है। तो अगर वो मुसलमान इस हदीस पर अमल करते होते तो आज हमारे हॉस्पिटल भी होते, हमारे पास स्कूल भी होते। आप बताओ ये इस धोरारा क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो कौन ऐसा स्कूल है, कोई मॉडर्न स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखा दो जो मुसलमानों का हो। आप जरा बताइए कितने अफसोस की बात है। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की। अगर आप देखिएगा अल्लाह ने एक जगह फरमाया था कि वो मुसलमान, कौन मुसलमान, कुंतुम खैरा उम्मा, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो ये कोई डिग्री नहीं जो आपको दे दी गई है, इसके साथ जो कैद लगी वो जरा सुनिए। तुम बेहतरीन हो तब जब तुम अपनी ड्यूटी निभाओगे। तो तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। तुम्हारा काम था कि समाज में भलाइयां फैलाते रहो। जिस काम से तुम्हारे रब ने रोका है उससे खुद भी आपको रोकना है, और जिस काम से तुम्हारे रसूल ने जिस काम को करने का तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, तुम्हारे रसूल ने हुक्म दिया है, उसको खुद भी करना है और दूसरों को भी उसको करवाने का हुक्म देना है। तो ऐ मुसलमानों जरा देखो हमारी ड्यूटी क्या थी। हमारा वजूद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अगर हमारे वजूद से किसी का भी भला नहीं होता है तो हम तो उस झाग की तरह हो गए। वो झाग कैसी, वो झाग ऐसी कि अगर बारिश होती है तो झाग के वो उगलते हैं। कि आप कोल्ड ड्रिंक लाइए, थोड़ी देर के लिए एक मिसाल समझा करके अपनी बात खत्म करता हूँ और मुसलमानों बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने अपने वजूद से किसी मुसलमान को फायदा न पहुँचाया तो तुम्हारा वजूद बिल्कुल बेकार है। आज है क्या हमारे पास? अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि वान ज़ला मिनस समाई फसालत अयदियतुम बिक़दरिहा। अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, उसके बाद जब पानी नाजिल होता है तो उसके बाद कुछ ओबले और कुछ झाग निकल आती है। उसके बाद देखें आप गौर करें वो पानी के अंदर जो झाग होती है वो पानी नहीं, उसके बाद वो पानी उड़ जाता है और जो आसमान यानी वो झाग उड़ जाती है और जो लोगों के लिए फायदेमंद है अल्लाह उसे जमीन में ठहरा देता है। फिर आप तमसील समझिएगा अगर हमारे वजूद से किसी मुसलमान को कोई फायदा नहीं तो हमारा वजूद बिल्कुल झाग की तरह है। अगर सिर्फ हमारे अपने ही बारे में हम सोचते हैं, आज हमारे यहाँ कुछ पैसे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 4% मैंने बताया कि वो स्कूल का रुख नहीं कर पा रहे हैं। कि वजह क्या है? वजह उनकी गुर्बत है। तो एक गुर्बत इतनी गुर्बत है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो ए गुलामाने रसूल कमेटी वालों सुनो, तुम इतना बड़ा जलसा मुनक्किद करते हो, इस जलसे के अंदर कितना खर्च होता है वो सबको पता है। मगर ऐ लोगों ये जलसा सिर्फ रस्मी मत बनाना, ये रस्म मत हो जाए कि ये जलसा सिर्फ रस्मी होए और आप मजा लेकर के चले जाओ। नहीं, अपने नबी की उन तकलीफों को याद कर लेना कि जो नबी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए मक्के में बड़ी मुसीबतें झेली है मगर तालीम का पैगाम कहीं से आपने फरामोश नहीं किया बल्कि सिलसिला जारी रहा। इसलिए उन्हीं की आप उम्मत हो और ऐ मेरे आका के उम्मतियों, मैं आपसे बस आखिरी बात तय करके गुजरना चाहता हूँ। आपके दिल का एहसास में बेदार करना चाहता हूँ कि ऐ मुसलमानों आज ये वक्त ऐसा है, इस वक्त के अंदर आप बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है कि आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर हो जाएगा। तो कम से कम ये काम करके जाओ। मेरे नबी ने फरमाया था 3 काम करो। पहले नंबर पर सदके जारिया, ये जो मदरसा हाजी साहब ने कायम किया था, आप जरा सोचो इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ही जमात के अहले सुन्नत वल जमात के इन्हीं आज गुलामे रसूल कमेटी वालों ने एक हिम्मत बांधी और मैंने कहा आप हिम्मत करिए
और जान लीजिए इतना कि एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और अल्लाह फरमाता है यौमइदिन यस्दुरुन नासु अश्ततल जुरुम अमालहुम सुम्मा यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह के हुजूर एक दिन सबकी हाजिरी होगी और छोटी से छोटी बुराई अगर वो दुनिया से करके गया है अल्लाह उसे भी दिखलाएगा और छोटी से छोटी नेकी अगर वो करके गया है तो उसे भी उसके सामने रखा जाएगा। गोया इंसान के ज़मीर का बंद ताला खोल दिया जाएगा। इंसान खुद ऐसी सूरत में उसके नामे अमाल का बाद में खोले जाएंगे। उसका ज़मीर पहले फैसला सुनाने लगेगा कि अब हम किधर जाना है, जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा। इसलिए ये मदरसा इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। हाजी साहब को अल्लाह ताला करवट करवट में नसीब करे। उन्होंने जो मदरसा कायम किया था और जब तक ये मदरसा रहेगा उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश अल्लाह फरमाता रहेगा। मगर सुनो दूसरे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया इल्म छोड़ छोड़ के जाओ। ऐ लोगों कैसा इल्म, आप देखिएगा आदम अलैहिस्सलाम को अगर मलाइका पर फजीलत मिली तो उसकी वजह इल्म है। इल्म की वजह से इंसान जरा देखिए फरिश्तों से मुकर्रम होता है। इल्म ही की वजह से इंसान के ऊपर लक़द कररमना बनी आदम का ताज रखा गया। इल्म ही की वजह से अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने तुम्हें बेहतरीन सूरत में पैदा किया। उसकी वजह क्या थी? आप जरा देखो पूरे कुरान के अंदर 82 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर रब ने तालीम का जिक्र किया है। ऐ लोगों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाओ, जरूर बनाइए, मगर वो बच्चे जो हाई स्कूल में पहुँचने के बाद और उसमें से बच्चे कम से कम 12% ऐसे बचते हैं जो हाई स्कूल इंटर के बाद 12% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और कहते हैं आप हमारे घर के हालात सही नहीं है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए कि हमारे पास कोई स्कूल नहीं है। ऐ मुसलमानों आपको स्कूल अच्छे, आपकी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलकर के एक अच्छा स्कूल कायम करें। और एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा इस वक्त कौम की जरूरत अच्छे मकतब का होना है। आज हमारा बच्चा सोशल मीडिया पर कभी इंजीनियर फला की तकरीर सुनता है, कभी जोकर नाइक की तकरीर सुनता है और उससे मुतासिर होकर के अपना अकीदा खराब करता है। आप बताओ इसमें बच्चे की खराबी क्या है? इसमें किसकी गलती हुई? यहाँ गलती हमसे हो रही है। अगर हमने उस बच्चे की हमारी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा आज गैर का फॉलोवर बन गया है, हमारी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा आज गैर मुकल्लिद बन रहा है, उसकी वजह क्या है? इसलिए सही मकतब में, हमारे मकतब में सही तालीम उलमाए कराम सिर्फ अपनी ड्यूटी न निभाएं बल्कि इमाम ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम की हर वक्त रहनुमाई करें। मगर ये कौम इतनी बड़ी नालायक हो गई है, इस कौम को तो इतनी फुर्सत नहीं है कि इमाम साहब के पास जाकर के कुछ इल्म हासिल करे। इसमें कोई 50 साल का नमाजी होगा, कोई 70 साल का नमाजी होगा, मगर उसको अभी सही से कुरान पढ़ना नहीं आया। मुसलमानों जरा बताओ, जबकि सही कुरान न पढ़ने की वजह से किसी की नमाज नहीं होती है। आप बताओ इल्म हासिल करना तो फर्ज था, मगर हमने इसको नहीं महसूस किया। आज भी आपके पास वक्त है, मेरे आका ने तो फरमाया था इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र पहुंचने तक। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इमाम साहब की कम से कम इमाम साहब की तनख्वाह की अगर हम बात करें तो आज इतने बुरे हालात हो गए हैं। आप जरा बताओ इस महंगाई के दौर में आज के जमाने के अंदर जलसा कराने वाले जलसे से ज्यादा जरूरी था जो तुम्हारे मदरसे में तालीम दे रहा है, तुम्हारी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसकी तुम खिदमत करते होते। आज उसको पता नहीं है 10,000 उसको तनख्वाह देते हो, उसके बाद उसके बच्चे का खर्च कैसे, उसके घर के अखराज कैसे पूरे होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। मगर हमारी कौम इतनी बड़ी नालायक हो चुकी और इतनी अपाहिज बन चुकी है इस मामले के अंदर कि जलसे में आने वाले मुकल्लिद को 20,000 का लिफाफा देगी, मगर अपने इमाम को 200 पैसे 500 का लिफाफा नहीं दे सकती। बताइए हवा यही जो रहेगी तो ऐ नतीजे बहार कहाँ से आएंगे रानाइया चमन के लिए? जो तुम्हारी 5 वक्त मस्जिद की अगर इमाम ना हो तो आजान बंद पर नहीं होगी, अगर इमाम ना हो तो मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, मगर आज उसकी कोई इज्जत नहीं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी बर्बादी का दरवाजा जो ही नहीं खुला है। तुमने कुरान ऐलान करता है भाई अल्लाह कहता है अगर तुमने मेरी राह पर चलना छोड़ दिया तो हम तुम्हें हर पे गलत बता देंगे। हमारा दीन नहीं मिटने वाला है, इस दीन की इबादत हम उनसे ले लेंगे जिन्होंने हमारे दीन को बर्बाद करने का पाप देखा ना पाप मंसूबा बनाया। मुसलमानों एक तो सारा बदन है चलनी, दर्द बेचारा परेशान कहाँ से उठूं, किन किन बातों का रोना रोया जाए, किन किन बातों को आपके सामने रखा जाए। वक्त नहीं, वक्त खत्म हो गया है। बस आखिरी गुजारिश करता हूँ अपने इमाम की कदर कीजिए। वो इमाम सबसे बड़ा तुम्हारा पीर है जो तुम्हें
में 5 वक्त नमाज पढ़ाता है। और याद रखिएगा, इनकी कदर करोगे तो दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगी। आज जो तबाही मची हुई है, जगह जगह मारे जा रहे हो, उसके कई रीजन है, मगर उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने ईमान की कदर नहीं की। हमारा मकतब का मौलवी इतनी मेहनत से पढ़ाता है, हमारे बच्चों को कुरान की तालीम देता है, इसकी कोई अहमियत नहीं। जागो मुसलमानों, पैसे जलसे में खर्च करो, मगर कहीं बचा करके आप अपने मदरसे में और अपने इमाम को खुश करो। ये आपको दीन का पैगाम बताएगा और दीन की सही तालीम होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारी कौम को सही समझ अता फरमाए और उलमाए कराम की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।